अंकल जी किधर जा रहे हैं? गायतपुरा और मुसीबा शबाज शरीफ का जनाजा कढ़न चला। ਪਿੱਛੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੇ ਜਾਣਾ ਸੀ ਤੁਰਕ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਹੀ ਰਹਿ, ਪਤਾ नहीं लग रहा इमदाद ਲੈਣ ਦੀ बजाय ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ तू चले जाना। जो उनसे ये चोर डाकू डकेट लेकर गए हैं ना, इधर से भाग जाते हैं तो उधर जाके ठीक हो जाते हैं, फिर अपने घर से पैसे दे के डंडे हाथ में और ये आगे आगे और आवाम पीछे पीछे। कौन कह रहा आटा मिल रहा, फक मिल रही है फक। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਮੁਲਕ ਸਾਡਾ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੀ ਮਕਾਵਾਂਗੇ, ਮਤਲਬ ਇਹਨੂੰ ਖਾਵਾਂਗੇ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਸਾਗਦਾਰ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਇਮਰਾਨ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਹੈ, बिल्कुल सही। ਉਹਨੂੰ ਬਦਦੁਆਵਾਂ ਹੀ नहीं। मुल्क का अल्लाह ही है, फिलहाल हुक्मरानों की बस की बात नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाले मोहम्मद। मैं कैसर पिया जी इस वक्त मौजूद हूँ मैं पीको रोड पे। आवाम से ये बात करने के लिए निकला हूँ कि महंगाई के हालात क्या है, इस मुल्क के हालात क्या हैं, जितनी हुकूमतें आज तक आ चुकी हैं उन्होंने क्या किया इस मुल्क के लिए, इस कौम के लिए, और अब जो हुकूमतें चल रही हैं ये क्या कर रही हैं, आवाम क्या चाहती है। हर तरफ आवाम सरापा एहतजाज है कि महंगाई कम की जाए इस मुल्क के ऊपर और इस कौम के ऊपर रहम किया जाए या हमारी जान छोड़ दी जाए। कौन बचाएगा पाकिस्तान, आवाम से पूछते हैं। महंगाई कौन कम करेगा, और साथ साथ ये भी पूछेंगे कि क्या ये जो 170 अरब का टैक्स इस हुकूमत ने जो अभी लगाना है इस आवाम के ऊपर, इसहाक डार साहब जो है वो IMF मुज़ाकरात के लिए गए हुए हैं, खुशखबरी का कह रहे हैं कि वो कोई खुशखबरी इस कौम को देंगे। देखना ये है कि क्या वाकई खुशखबरी मिलेगी, ये भी हम आवाम से पूछेंगे कि क्या ये खुशखबरी मिलेगी, कोई इन्हें कोई उम्मीद है खुशखबरी की। मज़ीद बात करते हैं, आइए हम चलते हैं आवाम की तरफ। 170 अरब रुपए का टैक्स इस आवाम के सिर पर मारिया जा रहा है, क्या आवाम दे सकती है टैक्स? ਆਵਾਮ ਟੈਕਸ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇਗੀ ਭੈਣ, ਘਰ ਖਾਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇਗਾ ਤਾਂ ਟੈਕਸ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇਗੀ। लेकिन टैक्स से लगना है, ਲੱਗੇਗਾ ਜਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਆਵਾਮ ਮਰ ਰਹੀ, ਹੁਣ ਹੋਰ ਭੁੱਖੀ ਮਰੇਗੀ। ਚੀਜ਼ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ, ਨਾ ਘਿਓ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਆਟਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਕਿਸੇ को। ਘਿਓ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹ 580 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਦੇ ਰਹੀ ਆਵਾਮ, ਬਲੈਕ 'ਚ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਗਰੀਬ ਉੱਥੇ ਕੀ ਕਰੇਗਾ। ਟੈਕਸ ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਅੱਗੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਕੋਈ। ਉਹ MNA ਦੀ ਸੀਟ ਜਿੱਤਦਾ, ਉਹ ਘਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਲਾ ਰਿਹਾ, ਜਲਸਿਆਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਲਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਗਰੀਬ ਆਮ 'ਚ ਇਨਵੈਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਗਰੀਬ ਆਮ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਰੁਲਦੀ ਪਈ ਹੈ। अच्छा इसहाक डार साहब कह रहे हैं कि मुज़ाकरात तो बाद मैं आवाम ਨੂੰ खुशखबरी देवांगा, क्या ਤੁਹਾਨੂੰ है कोई खुशखबरी ਦਾ इम्कान? ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇੱਧਰੋਂ ਅੱਲਾ ਤੋਂ ਕਮੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। अल्लाह का हो सकता है। ਹਾਂਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਵਾਮ ਨੇ ਅੱਗੇ ਆਪ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਕਮਾ ਕੇ ਖਾਣਾ ਹੈ। ਕਮਾਈ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਆਵਾਮ ਖਾਏਗੀ ਕਿੱਥੋਂ, ਤੇ ਦੇਗੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੀ। ਟੈਕਸ ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਿੱਲਾਂ 'ਚ ਪਈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ 'ਚ ਪਈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਘਰ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਇੰਨੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। 10 ਯੂਨਿਟ ਦਾ ਬਿੱਲ ਸਾਰਿਆ, ਬਿਜਲੀ ਸਾਰੀ ਹੈ, ਤੇ ਬਿੱਲ ਤੁਹਾਡਾ 6000 ਰੁਪਏ ਆਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ। ਟੈਕਸ ਹੀ ਆ ਰਿਹਾ ਨਾ ਫਿਰ, ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਬਦਦੁਆ ਵੀ ਦੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦਾ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਸਾਗਦਾਰ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਇਮਰਾਨ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਹੈ, बिल्कुल सही। ਉਹਨੂੰ ਬਦਦੁਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਗਰੀਬ ਆਮ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਤੇ ਬੈ ਕੇ ਖਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਪੰਜੇਰ ਖਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੁਰਗੀਆਂ ਖਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਰਾਈਆਂ ਖਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਗਰੀਬ ਦੇ ਘਰ ਤੋਂ ਦਾਲ ਨਹੀਂ ਪੱਕ ਰਹੀ। ਤੇ ਆਟੇ ਦਾ ਦੱਸੋ ਕਿ ਆਟਾ ਲੱਭਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ ਪਿਆ? ਤੇ ਇੱਕ ਤੋਰਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਤੋਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਫਤਾ ਨਹੀਂ ਲੰਘਦਾ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਦੇ ਘਰ ਦਾ। ਤੰਦੂਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ 10-10 ਤੋੜੇ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ 50 ਵੱਧ ਦੇ ਦੇਣ। हाँ, ये भाई की बात भी सुनते हैं। दसो भाजी हालात की ने पाकिस्तान दे? ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬੁਰੇ ਹਾਲ ਨੇ। ਅਬ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕੀ ਆਵਾਮ ਦੇ ਬੜੇ ਬੁਰੇ ਹਾਲ ਹੋਏ ਪਏ ਨੇ। ਹਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਘਰ 'ਚ ਬੁਰੇ ਹਾਲ। ਇਹ ਦੱਸੋ ਜਿਹੜਾ ਟੈਕਸ ਹੁਣ ਲੱਗੇਗਾ 170 ਅਰਬ ਰੁਪਇਆ ਆਵਾਮ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਡੰਡਾ ਪੈਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਕੀ ਬਣੇਗਾ ਇਸ ਗਰੀਬ ਆਵਾਮ ਦਾ? ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਮੇਟੀ ਪਾਈ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੋਲ੍ਹਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਫੇਰ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚ ਇੱਕ ਚਵਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ नवाज शरीफ ले गया या इमरान खान ले गया, खजाने फिर वेले ने। मरीम नवाज साहबा ने कहा कि ये मुल्क हमारा है और हम ही इसे संवारेंगे। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਵਾਕਈ ਸੰਵਾਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਮੁਲਕ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਕ ਸਾਡਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੀ ਵਿਗਾੜਾਂਗੇ। ਉਹ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਜ਼ਰਾ ਗਲਤੀ ਕਰ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵਾਰਿਆ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਮੁਲਕ ਸਾਡਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੀ ਮਕਾਵਾਂਗੇ, ਮਤਲਬ ਇਹਨੂੰ ਖਾਵਾਂਗੇ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਅਗਲਾ ਫਿਊਚਰ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਆ ਰਿਹਾ ਬੱਚਿਆਂ 'ਤੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ 'ਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਤੋਂ ਪੈਟਰੋਲ ਹਾਈਏ, ਪੈਟਰੋਲ ਵਧੇ ਨੂੰ 10 ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਤੇ ਅਗਲੀ ਹੈਡਲਾਈਨ ਚੱਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਇਹ ਪੈਟਰੋਲ 300 ਰੁਪਏ ਤੇ ਜਾਣਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਉਮੀਦ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਸਿਰਫ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਨੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਰਾ ਟਰੱਕ ਲਿਆ ਕੇ ਖਿਲਾਰਤੇ ਨੇ। ਇਹ ਆਟਾ ਆਵਾਮ, ਇਹ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਇਹ ਆਟੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਤਣੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ गली महल्ले 'ਚ ਕਿਸੇ ने नज़र नहीं आना, ना कोई गरीब आम तो ना कोई अमीर आम। अमीर अमीर ही है, गरीब मर गया बारा। ये भाईजान एक मौजूद है, इनसे पूछते हैं भाई जी महंगाई के हालात दसो की ने? महंगाई के हालात बहुत ही इंतहाई परेशानी का शिकार, और जौन सी भी हुकूमत है इनको शर्म नहीं आ रही, ना नून लीग को आ रही, ना PTI को आ रही। ठीक है ना,
वो उस पर डाल देते हैं, वो उस पर डाल देते हैं। इनको तो पता ही नहीं है अवाम के साथ क्या गुजर रहा क्या नहीं गुजर रहा। इनके घर में ये हालात हो उनको खुद पता चले। जिसका घर उजड़ता है तकलीफ़ उसको होती है। इनको पता नहीं कौन सी चीज़ सस्ती है, बताए। कुछ भी सस्ता नहीं है, घी नहीं सस्ता, नहीं चीनी नहीं, पेट्रोल नहीं, लेना नहीं देना नहीं। इनको खुद ना खुद शर्म आनी चाहिए। और इन्होंने दोनों कुंवतों ने बेशर्मी भी हाथ रखा हुआ है। और ये हमारे मुल्कों को नहीं चलने देंगे। इनकी नीयत ठीक हो तो चलने दें, इनकी नीयत नहीं ठीक है और ना इनकी नीयत ठीक हो सकती है। आपको किससे उम्मीदें हैं? अल्लाह भी उम्मीदें हैं। फिलहाल मैं तो कहूँ ठीक है ना, इनको दोनों को वोट दे ही ना। जो 600-700 रुपये मेरे मजदूरी कर लेकर क्या लेकर आता है? 1 किलो घी नहीं आ रहा, 600 रुपये का किलो घी, 1 किलो घी नहीं आ रहा, आटा नहीं आ रहा। कभी बच्चों की फीसें नहीं, कभी कुछ नहीं, कभी कुछ नहीं, कभी कुछ नहीं, कभी कुछ नहीं। कोई मशवरा ताकि इस मुल्क और इस कौम के हालात ठीक हो जाएं? इनके हालात नहीं ठीक हो सकते। मैं तो ये बात कर रहा हूँ, ये ज़मीन बेचे और सुकून से, ठीक है ना, जिसका मुल्क का लेना देना या कर्जा उतारे और हमारी जान छोड़े। जो उनसे ये चोर डाकू डकेट लेकर गए हैं ना, इधर से भाग जाते हैं तो उधर जाके ठीक हो जाते हैं। फिर अपने घर से पैसे दे, क्यों नहीं पैसे दे रहे? मैं तो ये कहूँ जब आगे वोट का दौर आए ना, ठीक है ना, डंडे हाथ में हो तो ये आगे आगे हो तो अवाम पीछे पीछे हो। यही काम होना चाहिए और इसके अलावा हमारी कोई समझ में नहीं बात आ रही। आटा मिल रहा है आवाम को? आटा मिल रहा, आटा नहीं मिल रहा। कौन कह रहा आटा मिल रहा? फक मिल रही है, फक। कौन सी फक? जो किसी दौर में घोड़े खाते थे वो फक मिल रही है। कौन कह रहा आटा मिल रहा है? और वो भी ब्लैक मिलनी में है, इनके बंदे खड़े हैं। गवर्नमेंट का नहीं आटा आ रहा, अवाम लेकर जिਵੇਂ तेरे पास पैसे मेरे पास पैसे, जाकर ट्रक ले आते हैं। ट्रक लेकर बाहर लगा दिया बोर्ड गवर्नमेंट का लगा दिया। आटा नहीं है, चोकर है, चोकर जो भैंसों को डाल दिया वो चोकर है। सही हो गया। आपने वोट दिया था पिछली दफ़ा? मैंने कहा बस ठीक है, वो वोट दिए, हम पछता रहे हैं। किसको दिया था? पहले हम नून लीग को वोट देते रहे, ठीक है ना। तो अब वोट देंगे कि नहीं देंगे? इस वक्त तो मैं दोनों को ही नहीं दूंगा। अच्छा, वोट नहीं देंगे? नहीं देंगे। ये ना बताओ, मेरी बात सुनो, ये सियासत नहीं कर रहे, ये तो अपने झगड़ों में फंसे हुए हैं जी। क्या जी, मुझे वोट देना है, मुझे वोट देना है। इनको अवाम को किसी चीज़ की समझ नहीं आ रही। कुत्ते भी चोर न ठीक है ना, मुल्क का अल्लाह ही है। फिलहाल हुक्मरानों की बस की बात नहीं है, यकीन से नहीं है, कुछ भी कदर नहीं। हमें हमारे सिर में जुतियाँ मार रहे हैं, यकीन से जुतियों वाला हिसाब बना है। डंडा फेरने वाली बात नहीं है। सब बैठे हैं डाकू डकरेरे, हर चीज़, ठीक है ना। इनको किस बात का नहीं पता, हर बात का पता है, ठीक है ना। ले जी, अंकल कह रहे हैं कि अवाम इनका ख्याल करती है तो हुकूमत को भी चाहिए कि अवाम का ख्याल करे। 75 ईयर्स गुजर चुके हैं, किसी ने ख्याल नहीं किया आज तक, लेकिन उम्मीदें हैं वाबस्ता। अभी देखते हैं क्या होता है इस पाकिस्तान और इस अवाम के साथ। आगे चलते हैं, मज़ीद बात करते हैं। ये अंकल मौजूद हैं। अंकल जी किधर जा रहे हैं? गायस बुलावन मुसीबा शबाश शरीफ का जनाजा कढ़न चला। हैं? हाँ जी, अच्छा। ये जनाजा ला चलना थे। सच बराबर अगर 200 ते 60 रुपए किलो का देते, पेट्रोल है तो 300 का का देता है, किराया हर चीज़ महंगाई है। गरीब लोग कितू खाओ मैनू। अच्छा। जदों दे आन मुल्क का बेड़ा गार कर देता है। आटा लभ रहा कि नहीं? आटा को नहीं लाभ रहा। तो ये गैस का सिलेंडर तुम लैके जा रहे हो, गैस भी नहीं आ रही? गैस ही नहीं आ रही। अच्छा। हाँ जी। बिजली के की हालात ने? बिजली बस आंधी है तो जान दी है। अच्छा। ते बिल्कुल तंग शंग? ये रदारी तो ही बात से निकले। जरदारी तो भी बात निकले ने? हाँ जी। अच्छा। महंगाई चांद पे पहुँच गई है। जितनी महंगाई है बेहद, हर पूरे मुल्क के नुकसान कर देता है ना लोगों ने। नुकसान करता है। हाँ जी। तुसी वोट दिता सी? अच्छा, वहाँ दीदे नहीं जे बंदियां नूं। तो हुण वोट किनू देना है? इमरान खान नूं। इमरान खान नू वोट दोगे? अल्लाह दे हुक्म नाल सेंदो। इमरान खान नू क्यों वोट दोगे? वो बंदा है अच्छा हैगा। इमरान खान अच्छा है। सीट ते आया है, सीट ते आया तो इन्ना रोला पा देता है। सही है गलत है, इसनों काम टेक ते करन ही नहीं देता। काम 5 साल चलो देखो करन देवें तो फिर ही है। गलत काम करे तो फिर ही है। अच्छा। हाँ जी, सही सही है। ते तुसी ऐसे हुकूमत तो नहीं खुश? ਅਸੀਂ नहीं खुश। भाईजान 170 अरब रुपए का टैक्स अवाम के ऊपर लगने वाला है। जो हमारे साथ डार साहब हैं, कह रहे हैं कि अवाम को खुशखबरी देंगे, लेकिन दूसरी तरफ 170 अरब का टैक्स अवाम पे पड़ेगा। क्या ये अवाम अफोर्ड कर लेगी? हमारी अवाम को तो बस अल्लाह ही हाफ़िज़ है। हमारी अवाम और हमारे वज़ीर आज़म साहब सब भी जो है ना खाने पे लगे हैं, ठीक है। बाकी जो है ना, रही बात डॉलर, हमारा क्या कसूर है? हमने घी महंगा लेना है, 550 का लेना है। अगर इन्होंने 600 का कहा, हमने घी 600 का लेना है। हमें इस डॉलर से बढ़ने या कम होने से हमें
इन चीज़ों की हमें नहीं पता, हमें अपने पैसों से लेते हैं। हमने इन्होंने कहा ना 600 का घी लेना है तो हमने 600 का लेना है। बड़ी चोर ठग या ठग या कमा उल्टा सीधा कर के कमा के हमने अपने बच्चों के लिए पूरा करना है, मगर इनका डॉलर खुद अपनी जेबें भर रहे हैं, आ जाके गरीब आवाम फंस रही। सुनते होते थे वालिद साहब कहते होते थे एक बादशाह था, वो अपनी आवाम को कहता था, बड़ा परेशान करता था, वो बादशाह परेशान होता है, मेरी आवाम परेशान नहीं होती। वो उसने पता नहीं, ये बड़ी पुरानी कहावत है, और उन्होंने कहा कि इनको ना आवाम बस ये कहती थी कि जल्दी जल्दी मार दो छितर और हमारे पास टाइम है। वाकई वही बात है, हम छितर खा रहे हैं और हमारे पास टाइम नहीं कि इनके पास जाएं। और बहुत ज़्यादा बुरा इंडिया ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ, ਮਗਰ ਅੱਜ ਇੰਡੀਆ ਸਾਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਪ ਹੀ ਮਰੇ ਪਏ ਨੇ। ਕਟੋਰਾ ਫੜਦੇ ਨੇ, ਸ਼ਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਅਮਰੀਕਾ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੋਂ ਕਟੋਰਾ ਉਹ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਆਪ ਲੁਕਣ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ। ਪਿੱਛੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੇ ਜਾਣਾ ਸੀ ਤੁਰਕ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਹੀ ਰਹਿ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੇਰੇ ਆਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਇਮਦਾਦ ਲੈਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਤੂੰ ਚਲੇ ਜਾਣਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿ। ਸਾਰੇ कटोरा फड़िया, वो खुदा दा वास्ता या माफ़ करो, मगर यह जीरो है ने, इन्होंने अपने बैंक भर ले ने, फुल टका के भर ले ने, आ जाके गरीब आवाम को निचोड़ रहे हैं। इस हुकूमत को चाहिए कि आवाम का सोचें, आवाम का भला करें, इस मुल्क का भला करें, आपस में ना लड़ें, ताकि इस मुल्क और इस कौम का भला हो सके। उम्मीद करता हूँ आपको ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। इजाज़त चाहूँगा, अल्लाह हाफ़िज़।